استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن طالب علم کو بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسی عظیم شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ بے شک استاد ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی مانند ہے۔ آج ہمارے ساتھ پرنسپل سر سید اسکول بصیرپور عبدالرزاق چودھری صاحب ہیں، جنہوں نے اپنی 20 سالہ زندگی میں ایک ایسی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ پیپر چیک کر کر کے آپ نے 5000 بال پوائنٹس اکٹھی کر ڈالی۔ آپ کی یہ مثال قلم اور استاد کی محبت کی ایک لازوال مثال ملتی ہے۔ یہ مثال انہوں نے کیسے قائم کی اور آج بصیرپور میں ایک ایسی پہچان بن گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے بال پوائنٹس کس مقصد کے لیے اکٹھی کی اور ان کا کیا ویژن تھا کہ یہ بال پوائنٹس اکٹھی کر کے میں کوئی ایسا پیغام دے سکوں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو کنگریچولیشن کرتے ہیں کہ آپ نے دن رات محنت کر کے یہ بال پوائنٹس اکٹھی کی، اور ہمارے سننے میں آیا ہے کہ آپ نے یہ جو مارکنگ کی ہے، مارکنگ کرنے کے بعد آپ ان کو پھینکتے نہیں تھے، کیونکہ قلم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو روشن ستارہ بناتی ہے، تو آپ نے یہ کیسے سوچا؟ آپ کا بہت شکریہ بٹو صاحب کہ آپ تشریف لائے۔ بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر، اور ٹیچر آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر ریڈ پینسل یوز کرتا ہے، تو ریڈ پینسل اسٹوڈنٹس کی اصلاح کے لیے ہی یوز کی جاتی ہے۔ تو بچوں کے جب وہ کام کرتے تھے، ہوم ورک کرنا انہوں نے، پھر ہم لوگوں نے چیک کرنا، وہ چیک کرتے کرتے ڈیفینیٹلی پینسل آپ کے ہاتھ میں آئی، وہ ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے وہ پینسلس ختم ہوتی گئیں، تو میں نے وہ پینسل نہیں ضائع کی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 94 یا 5 سے یہ میں ٹیچنگ کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں، تو یہ 2001 کی آئی تھنک بات ہے۔ اس سے پہلے پینسل ضائع ہوتی رہی، اور یہ بڑا کبھی بھی یہ میں نہیں بات بھول سکتا کہ 2001 کے بعد آئی تھنک گرمیوں کا موسم تھا، تو ایک پینسل ختم ہوئی ریڈ، تو یوں کر کے میں نے پھینکی جیسے میں اس سے پہلے پھینکا کرتا تھا۔ یقین کریں اب بھی ایسے لگتا ہے جیسے وہ سما واپس لوٹ آیا ہو، اور وہ میں نے پینسل جب پھینکی نا جی، تو کچھ لمحوں کے بعد میری اچانک نظر اس پینسل پر پڑی، تو وہ سنگل پڑی ہوئی تھی وہ میرے سین میں، اور وہ مجھے فیل ہوا کہ اس پینسل کو زبان ملی ہوئی ہے اور وہ کچھ کہہ رہی ہے مجھ سے۔ جب میں نے فیل کیا اپنے دل دماغ کی آنکھوں کے ساتھ، تو کہہ رہی تھی کہ عبدالرزاق دیکھ، میں نے تیرے بچوں کے لیے کیسی کیسی خدمات سر انجام دیتی ہوں، اور تو نے مجھے ڈسٹ بن میں پھینکا اور یہ میری حرمت رکھی، تو نے یہ میری قدر کی، میں تیرے نسل کے لیے کیسے کر رہی ہوں۔ یقین کریں بٹو صاحب، میرا دل دہل کے رہ گیا، اور میں اٹھا، پینسل کو پکڑا، اٹھایا، میں نے اپنے سینے سے لگایا، اس کو بوسہ دیا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو جناب میں نے رکھا سادر۔ وہ پینسل جو میں نے چیک کی نا جی، چیک کی، ختم ہوئی، پھر نہیں میں نے پینسل کو جانے دیا، چاہے وہ ریڈ تھی یا کوئی بھی تھی، کیونکہ خاص طور پر ریڈ زیادہ یوز ہوتی تھی میرے ہاتھوں میں، تو وہ پھر میں پینسل کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ پھر میں جیسے جیسے میں چیک کرتا گیا، بچوں کے ہوم ورک کو کرتا گیا، پھر وہ اکٹھی ہو رہی تھی۔ تو یہ 5000 پینسلیں اکٹھی کرنا یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ہاں، یہ تو خیر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ اتنی ہیوج کلیکشن ہو جائے، یہ تو میرے دماغ میں کبھی بھی نہیں آیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا یہ ریکارڈ بن جائے گا، کبھی بھی نہیں آیا۔ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں، مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ 5000 پینسلیں اکٹھی کی ہیں، تو اگر آپ کو آفر کی جائے کہ آپ ان کو سیل کر دیں، اگر میں ہی آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ مجھے سیل کر دیں، تو کیا آپ سیل کر دیں گے؟ او بٹو صاحب، کیسا سوال کر دیا! یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ دیں کہ رزاق صاحب آپ مجھے اپنی روح سیل کر دیں۔ کیا کوئی روح بھی سیل کرتا ہے جناب والی؟ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ میری جو پرسنل ڈائری ہے نا جی، میں نے اپنی مسز کی۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کا جو دایاں انگوٹھا اس پہ ڈمپ ہے اور دوسرے بائیں پہ ڈمپ نہیں، اس کا کیا راز؟ آخر ایسی کیا محنت کی ہے کہ آپ کا وہ ڈمپ بن گیا؟ یہ آپ نے پتہ نہیں کہاں سے میرا یہ راز اٹھا لیا ہے۔ لکھتے لکھتے میرا نا یہ ہاتھ، یہ ڈمپ ہے، اور دوسرا آپ دیکھیں، آپ یہ ڈمپ نہیں ہے، یہ بالکل صاف، یہ ذرا دونوں کا جائزہ لیں گے نا سر، تو آپ فیل ہوگا کہ یہ ادھر تو ڈمپ ہے، ادھر صحیح ہے۔ لیکن اللہ کا حضور پیش ہونے کے لیے جب اللہ تعالیٰ میرے سے حساب لیں گے، میں کہوں گا یا اللہ دیکھ، میں نے تیری مخلوق کی خدمت کی، یہ ڈمپ میری یہ علامت ہے، یہ میری نشانی ہے، تیری مخلوق کی خدمت کرتے کرتے یہ ڈمپ پڑا ہے، تو میری بخش فرما دے، اور میں یہ یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ وہ اللہ تعالیٰ میری بخش فرمائے گا انشاءاللہ۔ سر ہمارے رورل ایریاز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جب ان کو تعلیم کے لیے اداروں کی ضرورت تھی، تو ہمارے سننے میں آیا ہے کہ آپ نے 20 سال پہلے جب لوگوں کو تعلیم کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا تھا، تو آپ ایک واحد سہارا تھے جو کہ آپ کے پاس بیچلر کی لڑکیاں آتی تھی اور طلبات آپ کے پاس تعلیم یافتہ ہوتے تھے۔
जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 20-25 साल आप पीछे चले जाएँ कि यकीन करें कि हमारे लड़के लड़कियाँ उन्हें वसीरपुर से बाहर दीपालपुर, उकाड़ा, लाहौर तक जाना पड़ता था। मैं समझता हूँ कि खुदा ताला का एहसान था, करम है। मैं अल्लाह का ही करम समझता हूँ कि उसने मुझे अता की, ताकत दी और बच्चे थे या बच्चियाँ थी, बेटे थे या बेटियाँ थी, वो इस बंदा नाचीज़ के पास वो पढ़े उन्होंने और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रोज़गार के साथ हैं। सर, जिस तरह आपने ये रेड बॉल पॉइंट्स इकट्ठी की, तो आप समझते हैं कि आपके बसीरपुर में कोई मुकाबले में कोई ऐसा है? नहीं सर, देखें उस्ताद जो होते हैं ना जी, सारे काबिल एहतराम होते हैं और हर इदारा जहाँ भी कोई काम हो रहा है, मेरा ये यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इदारा है, स्कूल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, हर इदारा अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि हमारे बेटे बेटियाँ हमारे स्टूडेंट्स शानदार रिजल्ट हासिल करें। मुकाबला नहीं हो सकता, यही हो सकता है कि आपकी मेहनत कितनी है, आप कितने मेहनती हैं, तो इस पे तो बात हो सकती है, लेकिन मुकाबला नहीं है। लफ्ज़ ये छोटा सा है। मैंने हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पर बात की है और बच्चों को तालीम और तरबियत की ज़्यादा बात की है कि ताकि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान के शानदार और ज़िम्मेदार शहरी बन सके, ना कि वो सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन बने। सर, आपने बॉल पॉइंट्स तो इतनी इस्तेमाल की, आपने कोई बुक्स वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ लिखी है? अल्हम्दुलिल्लाह पेंसिल्स तो इकट्ठी होती गई, मैंने इकट्ठी नहीं की। मुझे बल्कि लेट मी से मुझे ये कहने दें कि ये मेरे खुदा का एहसान था, करम था कि या मेरा लगन है, चूँकि यूँ कह लें कि मेरा ये क्रेज़ है, ये मेरा इश्क है, मेरा जुनून है पढ़ना पढ़ाना और जो है ना जी बच्चों को और इस नस्ल को ख़ास तौर पर, चूँकि मैंने पहले ही बोला कि हमारे जो इलाका है जी बड़ा रूरल एरिया है, बड़ी कमी है यहाँ पे। यकीन करें मैंने मुझे कई दफ़ा कई दोस्तों ने कहा कि यार आप बसीरपुर से निकलो, उकाड़ा आओ, लाहौर आओ, साहिवाल आओ, बड़े रुपए आप कमाएंगे। मैंने कहा कि फिर बसीरपुर को कौन पढ़ाएगा, इस नस्ल को कौन पढ़ाएगा। मैंने फिर इरादा किया कि रोज़ी तो मेरे खुदा के इख्तियार में थोड़ी है या ज़्यादा है, मैंने कहीं भी नहीं जाना, मैंने बसीरपुर में रहना है और मैंने बसीरपुर को पढ़ाया। और यकीन करें आज हालात ही इस पोजीशन पे हैं कि ये 20-25 साल के बाद भी मेरी जो बिल्डिंग है स्कूल की, वो रेंटेड बिल्डिंग है। घर भी मेरा अजीब सा है, पुराना सराना सा घर है। मैं एक उस्ताद हूँ, एक टीचर हूँ। टीचर को रुपए की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसका सरमाया उसके तालिब इल्म है और वही इज़्ज़त एहतराम मुआशरा देता है, यही मेरे लिए एहतराम है। सेकंडली ये है कि चूँकि पेंसिल्स की ये हुई कलेक्शन हो गई, तो फिर वो मुझे मेरे कुछ दोस्त मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये इनकरेज किया कि यार आप लोग ना इतना काम की उम्र गुजर के पढ़ाते हुए, तो आप ये गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको अप्लाई करें। तो फिर मैंने ये कोई एक 2-4 हफ्ते पहले मैंने गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको अप्लाई किया हुआ, कवायद भेजे हुए हैं। अब अल्लाह करे कि मेरा ये रिकॉर्ड बने। सर जी, जो आपने बुक्स वगैरह लिखी हैं वो किस बेस पे हैं? उसमें आपने तलीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपनी क्या कोशिश की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। इसमें सर मेरा बेसिकली जो सब्जेक्ट है ना जी, वो बेसिक एजुकेशन पर है। मिसाल के तौर पर अलजबरे को लेते हैं, मैंने अलजबरे पर 5 बुक्स लिखी हैं जो 4, 5, 6, 7, 8 तक लिखी हैं। अब सवाल ऑटोमेटिक रेज ये होता है कि यार आपने क्यों लिखी? ऑलरेडी किताबें मौजूद हैं सोसाइटी के अंदर या मार्केट के अंदर। अब मसला ये है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप एक बच्चा 9th-10th में आया, 9th-10th में जाके बच्चा मैथ में क्यों कमज़ोर हो जाता है? आप सर्वे करके देख लें कि अगर 100 बच्चों की क्लास है तो 100 में से 90 बच्चा लड़का या लड़की ये आपको फील करवाएगा कि हाय मैथ मर गई, मैथ मुझे नहीं आती। उसकी क्या रीज़न है? उसकी वजह सर यही है कि जो आपका 6वीं 7वीं 8वीं की जो मैथ है या उसके अंदर जो अलजबरी जो पोर्शन है वो इतना नाकस है, बेतरतीबा है, बेढंगापन है कि बच्चे समझ नहीं आती, एक बेस नहीं बनती। सेकंड फिर एक और बात है माजरत के साथ कि समटाइम हम जब पढ़ाते हैं ना जी, उसमें भी हम कमी को तय कर जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उसकी बेतरतीबी को देखते हुए ये फील किया कि इसको अच्छे तरीके से लिखा जाना चाहिए, यानी कि इंतहाई शानदार अलजबरे को लिखने की कोशिश की है। एज वेल एज मैंने इंग्लिश ग्रामर पर साथ मैंने 7 बुक्स लिखी है, सीरियस है वो, 2 क्लास से लेकर 8वीं तक। अब उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप देख लें कि एक बच्चा 1 क्लास से निकलता है BA तक जाता है, मुश्किल क्या उसको ग्रामर नहीं आती। मिसाल के तौर पर और टीचर क्या करते हैं, सिर्फ वो बुक पढ़ाई, मशक़े ग्रामर करवाई, फॉर्मेलिटी पूरी की, दैट्स ऑल। बच्चे को खाक समझ आएगी। मैंने ये क्या है कि 2 क्लास के बच्चे के को दिमाग में रखा, उसके मुताबिक ढाला, फिर ऐसी स्टेप अप क्या 3, 4, 5, 6 बड़ी तरतीब के साथ मैंने 5 तक लेकर गया। 5 तक मेरा बच्चा जब ग्रामर करके आता है अच्छा खासा बाशऊर हो जाता है। 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर इतनी स्टैंडर्ड ऑफ ग्रामर मैंने लिखी है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हैरान हो जाएंगे बच्चे और इंशाल्लाह साज़ा मुझे दुआएं देंगे। आपकी तलीमी निज़ाम के हवाले से बहुत बड़ी कारकर्दगी रही है और आप बसीरपुर के जो हमारे तलीमी इदारे हैं जिसमें अभी भी हमारे जो तलबा तालबात हैं जिनको आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, तो आप तलीमी इदारों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? हमारे सिटी के अंदर आप देख रहे हैं सर, गर्ल्स कॉलेज है, स्टाफ कोई नहीं,
बॉयज़ कॉलेज है, स्टाफ कोई नहीं, ठीक है। और भी हमारे प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट सेक्टर के, या मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, स्टाफ की कमी है और भी सहूलतों की कमी है। और एक और चीज़ ये है कि टेक्निकल एजुकेशन कोई भी सिस्टम नहीं है हमारी सिटी के अंदर। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सर सैयद स्कूल के अंदर हम लोग बी फार्मेसी की क्लास को स्टार्ट कर रखे हैं, जबकि पहले हमारे शहर के बच्चे जो थे वो दीपालपुर, उकाड़ा, सहीवाल, लाहौर की तरफ जा रहे थे, और अब बी फार्मेसी के लिए हम लोगों ने बाकायदा क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं बी फार्मेसी के लिए सर सैयद स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह। सर टेक्निकल की आपने बात की, तो कंप्यूटर के हवाले से भी यहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह हो रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्यूटर लैब हमारे पास बड़ी जदीद कंप्यूटर लैब है, बड़ी वंडरफुल किस्म की, ज़बरदस्त A1 किस्म के हमारे पास नाज़म साहब है, बड़े सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, ज़बरदस्त शानदार वो हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, बड़ी लगन के साथ काम करवाते हैं। सर जी आपने जो बुक्स वगैरह लिखी हैं उसमें ये भी हमने देखा है कि जो आपकी बुक्स के पेज हैं उनमें से एक पेज खाली है, उसकी क्या रीज़न है? वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। वो ये होता है ना कि बच्चों को आदत होती है, थोड़ा सा लिखा, पेज फाड़ा, फेंक दिया। वो मैं ना शुरू से वो पेज वो उठा लेता था जो इधर खाली होते, तो वो मैं ना एक तरफ से जो खाली होता तो उस पर मैंने सर असल मुसद्दा लिखा है, जो राइटर की या शायर का सबसे कीमती सरमाया होता है। जो राइटर होते हैं, जो शायर होते हैं, उनसे पूछिए आप, असल मुसद्दा उनका जो है ना वो हाथ का लिखा हुआ कीमत होती है। तो वो 12-13 किताबें हैं, तो राउंड बाउंड कोई 12-14 हज़ार पेजेस होंगे जो मैंने लिख दिए होंगे। उसमें राउंड बाउंड कोई 10,000 पेज ऐसे होंगे जो एक तरफ से लिखे भी होंगे बच्चों के, दूसरी तरफ से मैंने लिखे, और कोई 1000-1500 मैंने वो दस्ते शस्ते खरीदे। ये भी वही बात है कि सर मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे ने अल्लाह के हज़ूर पेश हो जाना है। आखिर मैडम खदीजा परवीन को ये बोला हुआ है और अपने दोस्तों को भी बोला हुआ है कि भाई जब मैं मर जाऊँ तो कब्र को थोड़ा सा खुला कर लेना, एक तरफ से मुझे लिटा देना, दूसरी तरफ ये जो है ना रेड पेंसिल ये भी दे देना मेरे पास। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ सर, उस्ताद हूँ। और बल्कि आपके ये चैनल के साथ से मैं कहता हूँ कि अगर देखें सोसाइटी का हाल क्या हो चुका है, ज़वाल पजीरी का अलामत देखें, इसकी ज़िंदा निशानी पालपुर यूनिवर्सिटी कलमिया देख लें, सानिया देख लें, चूँकि टीचर नहीं था वहाँ पर तो तबाही बर्बादी हुई, ठीक है। और टीचर आएगा, जब भी टीचर आएगा आप टीचर को प्रोफेसर टीचर बना लें, टीचर को बना लें वीसी। जो वीसी या जो मैनेजमेंट थी कमज़ोर थी, क्योंकि वो डीलर थे, वो करप्ट थे, उन्होंने गड़बड़ की। वहाँ पे होता टीचर मर जाता, कसम खुदा की मर जाता। जब उसने देखा कि मेरे बेटे बेटियों के साथ हो क्या रखा है, कसम खुदा की मेरा कलेजा चलनी, अब भी कलेजा चलनी है। मैं वसीर में हूँ लेकिन दर्द यही है, पाकिस्तान के किसी भी कोशिश मेरे स्टूडेंट के साथ, मेरे बेटे बेटियों के साथ जब यह जुल्म होता है तो कसम खुदा की मेरा दिल फट जाता है, खून का आंसू होता है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि मोबाइल दौर जिस तरह टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, लेकिन एक उस्ताद की जो अहमियत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई है। टीचर या तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ख़त्म हो चुका है, ना पैदा हो गया है, छुप गया है, क्योंकि उसकी इज़्ज़त तकरीम वो सोसाइटी नहीं दे रखी। अब उसकी जगह पर, टीचर की जगह पर आ गया डीलर। टीचर ख़त्म हो गया है, डीलर आ गया है, बिजनेसमैन आ गया है। डीलर करता है डील, ठीक है। वो स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझता, वो समझता है स्टूडेंट को क्लाइंट्स, गाहक, कस्टमर समझता है। तो वो डीलर डील करेगा, टीचिंग क्या करेगा, खाक करेगा। यही वजह है सोसाइटी तबाह बर्बाद हो रही है। जब तक आप टीचर का तकद्दुस बहाल नहीं करेंगे, सोसाइटी दिन ब दिन ज़वाल पजीर होती रहेगी। उस्ताद के तकद्दुस को बहाल करना होना पड़ेगा और उस्ताद को बहाल करना पड़ेगा। और सर जी आपने सर सैयद स्कूल का बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, तो ये आपने कब आगाज़ किया और आपने कैसे सोचा कि इस इदारे को मजबूत किया जाए? दूसरे तलीमी इदारों से आपने मुख्तलिफ यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स हैं, आपको कितनी मेहनत के साथ, लगन के साथ आप आगे हैं? सर जब मैंने आगाज़ किया तब तो बिल्कुल बसीरपुर के अंदर तो सहूलतें थी नहीं, मतलब 1994 या 5 की मैं बात करूँ तब तो कुछ भी नहीं था। हम लोग ही थे, 2-4 दोस्त थे। मियाँ एजाज मरहूम थे, अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह अता फरमाए। हमारे दोस्त थे अब्दुल कादर साहब हैं, आप भी AG ऑफिस में बहुत बड़े अफसर हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे दोस्त हैं। मियाँ हसन चच्चर साहब हमारे प्यारे दोस्त हैं। जुल्फ़ारी भुट्टो साहब थे, वो फौत हो गए, अल्लाह के पास चले गए। अमजद शाकिर साहब थे, एक और दोस्त थे। मतलब ये हम लोगों ने ये इकट्ठा किया, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बसीरपुर में तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल ही। और यही तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी हम ये भी करेंगे। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमें ज़रूरत महसूस होती गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को, हम अपने बेटों को, बेटियों को ये सहूलतें फराहम करते गए। और आज देख ले कि शानदार कंप्यूटर लैब और बी फार्मेसी की क्लासेस बड़े ज़ोरों शोर से शुरू है, अल्लाह ताला के फजल करम से। बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब हकीकत कटा तब नहीं हुआ। आज हमारे साथ प्रिंसिपल सर सैयद चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब थे। सर आप आखिर में हमारे बसीरपुर की आवाम को क्या मैसेज देंगे? हमारी सर देखिए, नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद मीडिया मोबाइल ने कर दिया है। अब देखिए तबाही बर्बादी के एक और एग्जांपल सुन ले कि ये मई 2023 में आपका CSS का रिजल्ट आउट हुआ है। एवरेज क्या है? 1.85। ये पूरे पाकिस्तान से CSS के बच्चे कोई 20,261 अपियर हुए हैं, 354 आई थिंक पास हुए हैं और 246 या 45 पास हुए। ये पूरे पाकिस्तान पर एक सवाल निशान है कि निज़ाम तालीम कहाँ है। टीचर के पास ये इख्तियार हो कि वह अपने सिलेबस को उस माहौल के मुताबिक तरतीब दे,
ٹھیک ہے, اس پر چیک اینڈ بیلنس ہیڈ ماسٹر رکھے نہ. سر آپ نے جو بکس وغیرہ لکھی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کو کسی ادارے کی طرف سے یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے آپ کو کوئی میسیج آیا ہے کہ اس کو آگے لایا جائے؟ نہیں سر, نہیں, کوئی ایسا میسیج نہیں. جو پاکستان ہے سر, یہاں پہ جو اچھا کام کرتا ہے نا جی, اچھے کام کو تو تربیت دینی نہیں نا. یہ پاکستانی سوسائٹی کی جلمیہ, یہ بھی زوال پذیری کی علامت ہے. میں نے 12 کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ, لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا. میں آپ کے چینل کے وساطت سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا حکام بالا سے, حکومت پاکستان سے, کہ وہ ضرور اس بات کا نوٹس لے اور اس کو چھپوانے میں میری مدد کرے, کیونکہ یہ بہت اچھا. ناظرین, ہمارے ساتھ پرنسپل سر سید اسکول بصیرپور عبدالرزاق چودھری صاحب تھے, جن کا یہی کہنا تھا کہ نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور تعلیم کو بہتر کر کے اس پاکستان کا نام روشن کرنا چاہیے, کیونکہ ہر نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہے. باقی سر, آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکیں؟ مرتے دم تک خواہش تو یہی ہے کہ پینسل ہو میرے دائیں ہاتھ میں اور بائیں طرف اسرائیل آ جائے تو میں کہہ دوں کہ یار رک 2 منٹ, مجھے لکھ لینے دو کچھ, تو پھر تم آ جاویں تو لے جاویں. بھائی یہی خواہش ہے کہ پینسل ہو میرے ہاتھ میں اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. تو جب اللہ مجھ سے حساب کرے تو میں کہا یا اللہ, پینسل کی سفارش میرے لیے اور